Hello dear students, in this particular video we are going to see MCQs on English for MSBT Winter 2020 examination. Okay, as you know your paper is on 24th March 2021. Okay, so on that point of view I have prepared a practice question bank for you people, and this practice question bank is like a sample one for final examination. So let's have a look on what type of questions will be there in the exam. Okay, let me tell you one thing, that this type of link will be there in exam. आपको एक आपके WhatsApp नंबर पे एक लिंक मिल जाएगा, और वो लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पर ओपन होगा. तो so this is just practice test for you people. So you need to fill your name, all details correctly. I'm just showing you demo that see. So I'm writing here my name. Okay, then you need to enter your exam enrollment number, see whatever it may be, then followed by your exam sheet number 1 2 3 4 or whatever. Then you need to select your branch, or whatever branch is there you have to select one. Then you need to enter your WhatsApp number, whatever may be your WhatsApp number. Okay, then just you can submit it. आपको इसके बाद उसको next करना है. नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा. ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिस टेस्ट खाली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बनाई है. सो आई एम बेसिकली टीचिंग इंग्लिश. So you just try to understand how to answer the questions asked in the online examination. So first of all let's try to understand five questions are there on each chapter. I have tried to cover all the important units in this particular video. तो देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राम गोज टू द टेम्पल. सो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन में से द कहाँ पर है, तो इसको आपको क्लिक करना है. उसके बाद गोवा इज द पैराडाइज फॉर ऑल द हिप्पीज. ओके, मैं जो करेक्ट आंसर, आप जितने भी करेक्ट आंसर है उसको मैं क्लिक करते जाऊंगा. आप खाली उसको चेक करने की कोशिश करो या आप लिख लो. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन द आंसर्स. ओके, देन मैन इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन. यहाँ पर नो आर्टिकल है. ओके, मैन इज यूज्ड इन द जनरल सेंस, सो नो नीड टू यूज एनी आर्टिकल. देन एन इंस्पेक्टर ऑफ द प्रिजन वॉज हिटेड बाय द प्रिजनर्स. तो यहाँ पर एन आएगा, बिकॉज एन इंस्पेक्टर, you can understand an inspector, this one is the vowel sound, so obviously we have to click on this option. Arjun returned after an hour, because this particular hour, this word denotes which type of sound? Vowel sound. So click on this option. Then we have prepositions. Okay, इसके बाद हम preposition देखेंगे. Renu has great admiration dash wax museum. यहाँ पर उसका आंसर क्या है आप ढूंढने की कोशिश करो. ऑफ, फॉर, ऑन, इन, दीज आर दी ऑप्शंस. सो रीनू हैज ग्रेट एडमायरेशन फॉर वैक्स म्यूजियम. ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. इट इज नॉट गुड टू बी असेम्ड डैश वंस वर्क. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. इन, ऑफ, एट, टू. ओके, तो उसमें से करेक्ट आंसर है ऑफ. It is not good to be ashamed of one's work. Okay. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दिस मशीन हैज नॉट बीन इन यूज डैश 2000. अभी वो 2000 से अभी तक वो यूज में नहीं है, तो यहाँ पर हमें सिंस यूज करना चाहिए. एंड फ्रॉम इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन, दैट दिस मशीन वाज नॉट यूज्ड फॉर 2 years ओनली. ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर आएगा, नहीं तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, सिंस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है there is no exception to this rule. Remember always here बहुत सारे बच्चे ऑफ लिखते हैं, टू फॉर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, टू दिस रूल. देन वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज. दिस इज वेरी सिंपल वन. यू कैन रिमेंबर इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन appears in the exam, you can directly click to the option like under. Then we have conjunctions. अब conjunctions के भी 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, या उसके ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, whatever it may be the situation in the online examination. So the question like it was raining heavily dash we cancelled our trip to Goa. तो एंड बट और सो, तो इस पे यहाँ पर क्या है, रीजन है. हमने क्या किया,
बहुत जोर से बारिश हो रही थी, इसलिए हमने हमारी ट्रिप कैंसिल कर दी। तो इसका रीजन क्या देता है? सो देता है। सो इज करेक्ट हियर। देन वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज डैश मेनी पीपल डोंट गो फॉर इट। अब यहाँ पर है येट, देखो बहुत सारे बच्चे बट लिखते, अभी यहाँ पर बट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉकिंग इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। सो येट है ना, तभी भी कुछ लोग नहीं जाते। वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है, तभी बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करते, यानी कि दिस इज नॉट कंपल्सरी। सो यू कैन राइट हियर एट। देन हिज टू फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड टेनिस। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बट नहीं लिखना चाहिए आपको, क्या है? एडिशन है, उसके दो फेवरेट क्या है? स्पोर्ट्स है, दो फेवरेट है। तो कौन कौन से? एक फुटबॉल है और दूसरा क्या है? टेनिस है। और टेनिस नहीं हो सकता, या नॉर नहीं हो सकता, या बट भी नहीं हो सकता, तो वो क्या है? एंड हो सकता है। देन यहाँ पर इफ माई पेरेंट्स अलाउ देन आई विल डिसाइड टू कम विथ यू। देखो इफ एंड देन, इफ माई पेरेंट्स अलाउ देन आई विल डिसाइड टू कम विथ यू। इफ देन यहाँ पर क्या है? कंडीशनल है, दोनों भी चीजें कंडीशनल है। सो यहाँ पर इफ देन। देन नेक्स्ट इज डॉक्टर कलाम वॉज डैश अ साइंटिस्ट डैश एन ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। यहाँ पर तो आंख बंद करके आप लिख सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्योंकि डॉक्टर कलाम वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी। नॉट ओनली दिस इज ऑन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, but let me tell you this is a fact and it is universal truth also. Dr. Kalam was not only a scientist but also an author of many famous books. So not only but also is correct here. उसके बाद है टेंस। अभी टेंस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं? ही हैज डैश वर्क सिंस मॉर्निंग। अभी हैज के बाद आने वाला, हैज के बाद क्या आ सकता है? बिन, और उसके बाद सिंस मॉर्निंग ये यहाँ पर दिया। सिंस मॉर्निंग यानी कि वो पर्टिकुलर एक्शन क्या हुई? पास्ट में शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुई। सो ही हैज बीन वर्किंग, क्या आएगा यहाँ पर? हैज बीन वर्किंग। ओके, सो यहाँ पर वर्क निकाल देंगे आप और उसकी जगह पे खाली हैज बीन वर्किंग इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। देन सचिन डैश स्कोर 100 रन सिंस लास्ट मैच। सचिन स्कोर्ड, अभी देखो लास्ट मैच यानी कि ये सिंपल पास्ट है ना। आप समझने की कोशिश करो कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा टेंस का क्वेश्चन है पर्टिकुलर। तो दिस इज ऑफ सिंपल पास्ट। So you can write down here score V2, score, scored and scored. So scored is V2. Then I B completed my degree in 2008. अभी B क्या है? ये to be का फॉर्म है। ओके, तो to be का फॉर्म क्या है? तो am is are was were have has had, ये जो होते हैं वो पूरे to be के फॉर्म होते हैं। अभी 2008 यानी कि ये complete action है। So I have completed my degree in 2008. Okay, so this is complete one. देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टेंस आई डिड माई ड्यूटी प्रॉपरली। डिड यानी कि यहाँ पर V2 आया, यानी कि ये कौन सा टेंस है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। डिड, आई डिड माई ड्यूटी, आई डू माई ड्यूटी प्रॉपरली, ऐसा अगर होता तो वहां पर होता सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन यहाँ पर क्या है? आई डिड माई ड्यूटी प्रॉपरली। सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग वेल because in exam these kind of questions will be there. That's why directly I am showing you my screen. Actually this kind of questions will confuse you people also, that which option will be correct and how to click and all these things. That's why I am showing it. तो आप बच्चों आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, आप पॉज करके आप उसको लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो द सन डैश राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज वेरी सिंपल, डोंट राइज, विल राइज एंड कैन राउज एंड राइज ओनली। डोंट क्लिक ऑन एनी अदर ऑप्शन रादर देन ओनली राइजेस। ओके, देन चेंज द वॉइस। अभी उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसमें क्या है? आई विल बाय अ बुक। ओके, आई विल बाय अ बुक, तो विल बाय, विल प्लस अभी उसका अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो क्या होगा? अ बुक विल बी बॉट बाय मी, विल बी ऑब्लिक शाल बी। सो राइट डाउन हियर अ बुक विल बी बॉट बाय मी। ओके, द मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय द मैनेजर। अभी ये कौन सा सेंटेंस है? ये तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसको हमें एक्टिव में करना है। तो यहाँ पर क्या है? पहले द मैनेजर लो, द मैनेजर, द मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय द मैनेजर, तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है? द मैनेजर कंडक्टेड द मीटिंग। Who conducted the meeting? Why we have taken here conducted? Because here was is used. Okay, so simple past tense का sentence है, तो उसको हमने पहले उसको पैसिव में किया था, तो उसका एक्टिव करते समय हमें क्या करना चाहिए? यस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या है? द मैनेजर कंडक्टेड द मीटिंग। अब दूसरा क्या है? द मैनेजर विल कंडक्ट, ये नहीं हो सकता। द मैनेजर कंडक्ट्स अ मीटिंग, ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं हो सकता।
तो करेक्ट ऑप्शन इज द मैनेजर कंडक्टेड द मीटिंग। उसके बाद लेट द विंडो बी क्लोज, लेट प्लस बी प्लस पास पार्टिसिपल, ये उसका क्या होता है, उसका फॉर्म होता है या स्ट्रक्चर होता है। तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ये उसका पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस में हमें क्या यूज करना चाहिए, तो लेट प्लस बी प्लस पास पार्टिसिपल। ओके, तो अभी उसका हमें एक्टिव करना है इसका, तो क्लोज द विंडो, दिस वेरी सिंपल। क्लोज द विंडो का क्या होगा, वो लेट द विंडो बी क्लोज्ड। उसके बाद ऑल द अबव, लेट नॉट विंडो क्लोज, ये पूरे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हु ब्रोक द ग्लास, अभी देखो हु अगर एक्टिव वॉइस में आया तो उसका पैसिव वॉइस करते समय हमें बाय हुम करना चाहिए, और बाय हुम अगर आ गया पैसिव वॉइस में तो उसका एक्टिव करते समय हु करना चाहिए। इस तरीके का रूल है, हमने उसका ये रूल्स पूरे अच्छे तरीके से देखे हमने। और तुमको अगर उससे ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बाकी वीडियो देख सकते हैं, इसके भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल ई लर्न इंग्लिश एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो हु ब्रोक द ग्लास, तो हु का यहाँ पर क्या होगा, पहले तो बाय हुम होगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोक क्या है, ब्रोक इज V2, तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि V2 यानी कि यहाँ पर वॉच कहाँ पे ढूंढना है, तो बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन। ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट आंसर। देन कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द टास्क ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखो आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट है खाली, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। कंप्लीट द टास्क, लेट द टास्क बी कंप्लीटेड, ये बहुत आसान है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, लेट द टास्क बी कंप्लीटेड। ओके, उसके बाद चेंज द नरेशन आएगा, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंसेस आपको आएंगे, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच ये होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही सेज द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि अगर ऐसा सेंटेंस अगर आ गया जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, तो उसको वो सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी नहीं चेंज होता, खाली दैट यूज करो और सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दो। सो ही सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस वन इज द करेक्ट वन, बिकॉज ये सेंटेंस में हमने खाली क्या किया, खाली उसको दैट यूज किया, दैट दिस वन, सी ही सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। बाकी he said that the sun rises in the east, that is wrong. He said that the sun will rise in the east, that is wrong. Only this second sentence is correct, that he says that the sun rises in the east. Okay. Then next is save money, said father to son. अभी father son से क्या करते हैं, हमेशा advise करते हैं, so you can choose this one, father advise son to save money. अब यहाँ पर हमने that क्यों नहीं लिया, to क्यों लिया, तो ये सेंटेंस है imperative का। imperative सेंटेंस का indirect स्पीच में कन्वर्ट करते समय उसको टू ये कंजक्शन हमें लेना चाहिए, टू। ओके, उसके बाद मीना सेड टू साइली, विल यू कम विथ मी फॉर पिकनिक नेक्स्ट मंथ। अभी देखो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमें। अभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें देखना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है यहाँ पर, तो ये टेंस है इंट्रोगेटिव, सॉरी ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। सो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हमें ई पब्लिक वेदर एज अ कंजक्शन लेना चाहिए हमें। सो मीना आस्क्ड, सेड का क्या होगा यहाँ पर, आस्क्ड। मीना आस्क्ड साइली ई पब्लिक वेदर, ये देखो ये सेंटेंस में खाली ई पब्लिक वेदर आया, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट है। ई पब्लिक वेदर शी वुड कम विथ मी फॉर पिकनिक द फॉलोइंग मंथ। अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर चेंज क्या होगा, फॉलोइंग मंथ होगा। सो यू कैन क्लिक दिस particular answer, this one is the correct one. Then judge said to police arrest the criminals. अभी ये देखो ये भी अभी सेंटेंस कौन सा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव, कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट है ना, ये पूरा उसमें दिया जाता है। तो जज क्या करता है, हमेशा ऑर्डर देता है। सो द जज ऑर्डर्ड पुलिस टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स। अभी यहाँ पर टू हमें क्यों लेना चाहिए, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें टू लेना चाहिए कंजक्शन बोल के, ठीक है। दैट के बजाय हमें क्या लेना चाहिए, टू लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द स्मॉल बेबी सेड वाओ व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। अब ये देखो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। सो द बेबी सेड वाओ, यानी कि जॉयफुल इवेंट है, ठीक है, जॉयफुल थिंग है, यानी कि वो बच्चा कैसा है, खुश है, बहुत बहुत उसको जॉयस कुछ तो भी थिंग उसके माइंड में। तो इसको हमें कन्वर्ट करते समय
द स्मॉल बेबी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी नाइस फ्लावर. व्हाट अ नाइस फ्लावर को हमें क्या कैसा चेंज करना चाहिए, दैट इट वॉज अ नाइस फ्लावर. ओके, सो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं. देन अभी उसके बाद जो हमारे सीन पैसेजेस है 9 आर्टिकल्स, उस पर कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे. दीज आर दी सैम्पल क्वेश्चंस which will be asked in exam or may not be. Okay, may be asked or may not be, don't know exactly, but this is for the sake of practice only. You can remember, students. See here, what is the name of person who helped Shiva Kumar throughout his study? ये बहुत आसान क्वेश्चन है. इसका नाम है कृष्णा वेदव्यास. Okay, I am going somewhat quickly. What is the meaning of the word contaminating? Contamination का मतलब है pollution, तो यहाँ पर polluting word है. What is the long form of CAT? कॉमन एडमिशन टेस्ट. ये आपके चैप्टर में भी दिया है उसको, शिवाज ब्लेजिंग में, तो आप देख सकते हैं. उसकी लॉन्ग फॉर्म एग्जाम में बहुत सारे बार पूछते, वो ऑफलाइन थ्योरी एग्जाम में भी पूछते, ऑनलाइन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. सो रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु सेड बिलीव इन योर कैपेसिटीज, वर्क हार्ड, गिव योर 100% एवरी टाइम एंड ड्रीम बिकम्स ट्रू. ये किसने कहा है, तो ये कहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने. ओके, सो रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. What is the meaning of the word expedition? Expedition का मतलब होता है जर्नी, organized for particular purpose. Okay. Choose the correct meaning of the word renowned. Renowned का मतलब है famous, popular. तो ये बहुत आसान है. उसके बाद है when did Tata Group establish? Tata Group established in 1859. Remember, this is also important question because they may ask MCQs on this kind of questions also. What is the advice given by Anish father? Anish father had given the advice to Anish to wear helmet, to drive fast, to wear clothes. या ऐसे कुछ भी एडवाइस नहीं दिए थे, तो खाली क्या दिया था, हेलमेट पहनने के लिए उसको कहा था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी. ठीक है. सो हु आर द पीपल फ्लोरिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ जे.आर. टाटा. तो जे.आर. टाटा के लीडरशिप के अंडर कौन कौन से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने खुद का करियर बनाया था, वो एंटरप्रेन्योर बने थे, साइंटिस्ट बने थे, इकोनॉमिस्ट बने थे, लॉयर बने थे. तो ऐसे लोग है ये दरबारी सेठ, होमी बाबा, जे.डी. चोकसी एंड ऑल द अबव. ये पूरे पीपल है, और बहुत सारे दूसरे कुछ लोग है, सर जहांगीर भुई एंड ऑल दीज थिंग्स. Okay, you can remember these are the people who flourished under the leadership of J.R. Tata. So all the above is correct answer. Then what is the meaning of the word philanthropist? The philanthropist meaning, इसकी कौन सा ऐसा वर्ड है कि उसकी मीनिंग philanthropist है. ओके, या करेक्ट ऑप्शन है. अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अ जनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉजेस, काइंड पर्सन हु हेल्प द अदर्स एंड ऑल द अबव. इसका आंसर है ऑल द अबव, क्योंकि एक काइंड पर्सन होता है या जनरस पर्सन होता है, वो हमेशा दूसरों को या गरीब लोगों को हेल्प करता है किसी ना किसी तरीके से. सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कंडक्टेड अ मीटिंग. अभी प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये होता है प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल का ऊपर का जो फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल है उसका मीनिंग होता है लॉज और प्रिंसिपल्स, है ना क्या. तो लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट. महात्मा गांधी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि महात्मा गांधी एक तत्वनिष्ठ पर्सन थे. ठीक है, उनके कुछ खुद के कुछ लॉज थे, रूल्स थे, तो उसको हम ये प्रिंसिपल बोलते. लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल होते, उनका स्पेलिंग ये है. ठीक है. हाउ डिड गुरमीत सिंह हेल्प द अबंडेंट पीपल बाय गिविंग फूड एंड मेडिसिन. ओके, गिविंग प्रॉपर्टी, गिविंग वेल्थ, ये दूसरा कौन सा भी ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें से. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब है पुअर और हेल्पलेस. लैंडलॉर्ड्स, रिच एंड प्रोफेशनल, ये उसके मीनिंग नहीं हो सकते. ठीक है बच्चों. उसके बाद व्हाट डज द फ्रेज ग्रुएल इज इंसिपिड मीन्स. ग्रुएल इज इंसिपिड का मतलब है टेस्टलेस एंड अनईटन फूड. यहाँ पर वो चैप्टर में है गुरमीत सिंह के मसीहा फॉर द अबंडेंसी का, आप देख सकते हैं. इसके अगर आपको कुछ डाउट लगा तो आप वर्कबुक ओपन करके उसमें उसके करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं. बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, दिस टेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मी, सो ऑलमोस्ट 100% आंसर्स आर करेक्ट. ओके, ऑल द आंसर्स आर 100% करेक्ट, आई एश्योर यू. ओके, देन चूज द करेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ड बैन. ओके, बैन का लॉन्ग फॉर्म है बेसल एक्शन नेटवर्क. सो दिस वन, ओके, चेक इट इन वर्कबुक ऑल्सो. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट. फॉर मैनेजमेंट, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन मैनेजर इंस्टीट्यूट, ये आर रॉन्ग है. ठीक है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ई वेस्ट. अभी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये पूरे ई वेस्ट के ही
पूरे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इसको ऑल द अबव करने का। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EQ? EQ का मतलब है इमोशनल क्वेश्चंस, ये तो बहुत आसान है EQ। वाई शुड वी शुड ऑलवेज बिकम, हमें ऑलवेज क्या बनना चाहिए? तो रिमार्केबल बनना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए? मार्केबल, लेस मार्केबल या अनमार्केबल नहीं बनना चाहिए, तो हमें रीमार्केबल बनना चाहिए, है ना। देन नेम द एकेडमी स्टार्टेड बाय अरुणिमा सिन्हा। अभी अरुणिमा सिन्हा ने कौन सी एकेडमी स्टार्ट की थी विकलांग बच्चों के लिए? तो वो एकेडमी का नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी। यू कैन चेक द नेम इन वर्कबुक ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, बट दिस इज 100% करेक्ट, ओके। शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी। I hope there may be few questions from this particular question bank, so you can practice this also. This is very important. Which is the highest civilian award conferred to Arunima Sinha? अब अरुणिमा सिन्हा को कौन सा अवार्ड मिला था? वो था पद्मश्री, ओके। उसके बाद व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स व्हाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल? कौन सा भी व्हीकल ड्राइव करते समय हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स करना चाहिए? वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट, ड्राइव स्लोली एंड ऑल द अबव। ये तो करेक्ट है, ऑल द अबव, यानी कि पूरे ऑप्शंस करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर द कोलोकेशन सेव टाइम। अभी सेव टाइम कौन सा ऐसा कोलोकेशन है कि जो सेंटेंस है कि उसमें सेव टाइम ये फ्रेज एग्जैक्टली बैठती है, तो कौन सा है? पेपरलेस वर्क सेव टाइम, स्टेइंग अनस्टेबल सेव टाइम, स्लीपिंग सेव टाइम, नन ऑफ द अबव ये नहीं हो सकते, तो उसमें से पेपरलेस वर्क सेव टाइम। इस तरीके के कोलोकेशंस भी आपको एग्जाम में पूछेंगे। आखिरी के 2 चैप्टर में आप देख सकते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग नाम का एक चैप्टर है, तो उसमें कोलोकेशंस पूछा है। कोलोकेशंस मीन द कोलोकियल फ्रेजेस और कोलोकियल वर्ड्स, ओके, व्हिच जनरली वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक दिस सेव टाइम, हैव अ टी, हैव अ बाथ एंड ऑल दिस, ओके। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज कोलोकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीस डाइड ड्यू टू बाइक एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, हिट बाय ट्रेन ये नहीं हो सकते, तो बाइक एक्सीडेंट इज द करेक्ट वन। Then choose correctly spelled words COURAGEOUS, COURAGEOUS and बाकी के दूसरे पूरे रॉन्ग है, तो उसमें से पहला वाला करेक्ट है COURAGEOUS, आप चेक कर सकते हैं। Then choose the correct pair of the following, इसमें से गोल जेल। अभी ये गोल और जेल, ये गोल का मतलब है डेस्टिनेशन और ये GAOL का मतलब है जेल, ओके। ये गोल का मतलब क्या है? जेल है, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद जेस्ट का मतलब है जोक एंड एंथुसियाज्म का मतलब है जेस्ट, तो ये दोनों भी रॉन्गली मिसमैच कर दिए। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम वीक 7 डेज, ये करेक्ट है, और WEA के वीक फीबल बराबर है, ये कमकुवत या जो लोग क्या बोलते हैं उनको, दे डोंट हैव कैपेसिटी टू डू पर्टिकुलर टास्क, तो ये भी करेक्ट है। वीक का मतलब है 7 डेज, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ एन आइटम हॉट पोटैटो। अब हॉट पोटैटो नाम की जो आइटम है, यानी कि उसका लिटरल मीनिंग ये है कि स्पीक ऑन इश्यूज विच इज डिस्प्यूटेड, यानी कि ऐसे कुछ इश्यूज पे बात करना कि जो डिस्प्यूटेड है, यानी कि वो इश्यू पे अगर बात किया तो कुछ तो भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्वारल हो सकते हैं। सो दीज आर द क्रिटिकल इश्यूज, टॉकिंग ऑन क्रिटिकल इश्यूज, दिस इज कॉल्ड एज hot potato, okay. So remember items may be asked in exams, okay. Items are very important, you can practice items from workbook also. Which speech is given to welcome the guest? अभी ये भी एक सैम्पल है, अब इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन for our paper specially, because last time there was no exam for BCC, but this time there will be online exam. So which speech is given to welcome the guest? तो इसमें से कौन सा स्पीच है? तो ये वेलकम स्पीच है, ठीक है, वेलकम स्पीच ही दिया जाता है गेस्ट का वेलकम करने के लिए। तो उसके बाद है he said I will buy a book, he said I will buy a book, इसका आंसर है he said that he would buy a book, he said that he would buy a book, फर्स्ट वाला करेक्ट है। Then I have completed the task, the task was completed by me, the task is completed by me, the task has been completed by me, last one is correct, okay. Have, अभी यहाँ पर तुम बोलेंगे सर यहाँ पर has क्यों लिया? तो task is the singular, so we have taken here task has been completed by me, okay. अब comprehension का मतलब होता है to understand, to present, to prepare, to suggest नहीं हो सकता, तो comprehension का मतलब है understand. E-waste should be thrown outside, recycle properly, dump in the soil and all the above. तो इसका करेक्ट आंसर है हमें ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करना चाहिए, सो रिसाइकल प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है हार्डशिप, कठिनाइयाँ, बैड लक, ओके।
So this type of word may be asked in the exam. Who have grind mindset? अभी ये भी एक क्वेश्चन है, मैंने अभी खाली फॉर सैम्पल पर्पज सॉरी फॉर प्रैक्टिस पर्पज ओनली मैंने दिया है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. हु हैव ग्राइंड माइंडसेट. अब हमने जो चैप्टर ग्राइंड देखा उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर की उनकी माइंडसेट ग्राइंड थी, तो वो लोग कौन थे? सक्सेसफुल पीपल थे. सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जाम एंड द करेक्ट आंसर इज सक्सेसफुल पीपल. उसके बाद है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन. डोर टू मेंटर नाम के 9 नंबर के चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया, तो ये है मिस्टर लाल, मिस्टर पाल एंड नन ऑफ दीज. अब ये इतने पूरे सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको सबमिट करना है. ठीक है, मैं आपके सामने सबमिट करता हूँ यहाँ पर. ठीक है, अब सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर वो ऑनलाइन एग्जाम में आप तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कितने हमारे क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग है. अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो सकते हैं. देखो इसमें से 65 में से 64 करेक्ट है, ये कौन सा तो भी हमारा रह गया, या वो गलती से उसको रॉन्गली मैंने क्लिक कर दिया. ठीक है, देखो आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. अगर आपको करेक्ट आंसर देखना है तो जितने भी ये ग्रीन कलर में आ गए ये पूरे करेक्ट है, तो हम खाली एक ओवरलुक करेंगे उस पर, और कौन सा हमारा रॉन्ग हो गया उसको भी हम क्या करेंगे देखेंगे. ठीक है, सो दिस वाज फॉर प्रैक्टिस पर्पज ओनली बॉयज. रिमेंबर यू कैन पॉज द वीडियो. सी वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, तो इसको क्या हो गया पता है क्या? इसको दूसरा ही क्लिक हो गया, या इसको हमने बिलो हो गया. ठीक है, राइट, यस, दिस वाज द कंफ्यूजिंग वन. सो इसका करेक्ट आंसर अंडर ही है. ठीक है, wrongly I have clicked over here. Let me show you that the correct answer is under. Okay, बिलो गलती से यहाँ पर बिलो हो गया है, लेकिन उसका आंसर करेक्ट है. जो यहाँ पर अगर उन्होंने करेक्ट रॉन्ग ही बताया होगा तो आंसर इज अंडर. ओके, सो अदर हमारे पूरे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन एक जो कन्फ्यूजिंग था उसका रॉन्गली वहाँ पर क्लिक हो गया था, इसलिए वो अंडर को गलत बता रहा था. अदरवाइज हमारे 65 में से 65 पूरे करेक्ट है. ओके, जस्ट हैव अ लुक एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. यू कैन पॉज द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो with your friends so that they can get benefit of these particular MCQs. Okay, all the MCQs we have tried to solve for MSBT final examination, which is going to be conducted on 24th of the March. Okay, so friends, I hope you understood well and you all are satisfied with this particular session. Okay, and I wish you best luck for your coming examination, and thank you very much.